Today we are going to discuss problem based on strictly increasing and strictly decreasing function. Let's start. Revision. A function f of x is said to be a strictly decreasing function on open interval a comma b if f dash x is less than 0. A function f of x is said to be a strictly increasing function on open interval a comma b if f dash x is greater than 0. Question number 1. Find the intervals in which the function f given by fx equal to this is strictly increasing or strictly decreasing. So first write function fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30. अब now differentiate with respect to x. So differentiation of fx, f dash x is equal to x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, सो 4 3 जा 12, सो 12x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज और x स्क्वायर का 2x, 6 2 जा 12x माइनस 72 कांस्टेंट और x का 1. अब फर्स्ट सिंप्लीफाई 12 कॉमन, so we get x square minus x and 12 6 ja 72, so x square minus x minus 6. अब now factor of this by splitting middle term, x minus 3 and x plus 2, so we get factor of this quadratic equation. अब नाउ फाइंड टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि हमको मालूम है कि टर्निंग पॉइंट के वन साइड फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वन साइड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो फॉर टर्निंग पॉइंट्स put f dash x equal to 0. F dash x means 12 x minus 3 into x plus 2 equal to 0. After simplify we get x equal to minus 2 and x equal to 3. So we get two turning points, minus 2 and 3. Okay, now draw number line. X equal to minus 2 and x equal to 3. Minus 2 and 3, divide complete number line into 3 interval, minus infinity to minus 2, minus 2 to 3 and 3 to infinity. Here write function f dash x. F dash x is equal to 12. चेक कर लेते पीछे से, 12 x minus 3 और x plus 2, x minus 3 and x plus 2. Okay, अब now prepare small table, interval, sign of f dash x, and here write remark. Interval is minus infinity to minus 2, minus 2 to 3
and 3 to infinity. 3 to infinity. Now find sine of f dash x in the interval minus infinity to minus 2. So take any number between minus infinity to minus 2. Take minus 3 and tell me the sine of f dash x. Okay, so put x equal to minus 3 in f dash x. 12 is positive, minus 3 or minus 3, minus 6 negative. So positive into negative, negative. Minus 3 plus 2 minus 1. So negative into negative, positive. Means in first interval f dash x is positive. अब now take any number between minus 2 to 3. 0. अब 0 रखते अपन f dash x में. So negative into positive, negative. अब now take any number between 3 to infinity. 4. यहाँ रखते हैं 4 minus 3 positive, 4 plus 2 positive, 12 also positive. Means in this interval 3 to infinity f dash x is positive. Or we know that if f dash x is positive then fx is strictly increasing function. तो रिमार्क में क्या लिखेंगे? fx is strictly increasing function. SIF strictly increasing function. F dash x is negative means fx is strictly decreasing function in the interval minus 2 to 3. Or f dash x is positive in the interval 3 to infinity. So fx is strictly increasing function. So conclusion is in first and third interval fx is strictly increasing function and in middle one fx is strictly decreasing function. Next problem. Find the intervals in which the function f given by fx equal to sin x plus cos x in the interval 0 to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing. So first write function fx equal to sin x plus cos x. Now find derivative of this. So f dash x is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स. अब हम टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे क्योंकि टर्निंग पॉइंट के वन साइड क्या होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वन साइड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो फोर टर्निंग पॉइंट्स. Put f dash x equal to 0. So cos x minus sin x is equal to 0. Next step, cos x equal to sin x. Dividing both sides by cos x. So we get tan x equal to 1. Tan x equal to 1. अब इन द इंटरवल 0 to 2 पाई किस किस की वैल्यू 1 होती है tan के अंदर? एक तो tan 45 डिग्री की होती है. सो x इक्वल टू पाई बाय 4. और सेकेंड वैल्यू इन विच क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव? वी ऑल नो इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव. तो फर्स्ट में तो आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 और सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी आपको? थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 प्लस पाई बाय 4 मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4. अगर आप एक एंगल आपको मिल गया तो अदर एंगल आप इस तरह से निकाल सकते हैं. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस थीटा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो 180 प्लस थीटा और फोर्थ में हो तो 360 माइनस थीटा. सो वी गेट टू वैल्यूज पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. अब नाउ ड्रॉ नंबर लाइन एंड चेक द साइन ऑफ f dash x. f dash x is cos x minus sin x.
ड्रॉ नंबर लाइन। हमें चेक कहां से कहां तक करना है? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi, and we get two turning points. One is pi by 4, other is 5 pi by 4. Means we get three intervals: 0 to pi by 4, pi by 4 to 5 pi by 4, 5 pi by 4 to 2 pi. अब now prepare small table. Interval sin of f dash x and remark means nature of function. अब now there are three intervals: 0 to pi by 4, pi by 4 to 5 pi by 4, and 5 pi by 4 to 2 pi. Normally in this chapter we use open interval. Clear? But it in question it is given 0 और pi के साथ क्या given है? बिग ब्रैकेट। तो दोनों के साथ क्या आएगा? बिग ब्रैकेट आएगा। अब नाउ टेल मी साइन ऑफ एफ डैश एक्स। टेक एनी एंगल बिटवीन 0 to pi by 4, pi by 6 30 डिग्री। इसके बीच में अपन ले लेते हैं pi by 2, और 225 से 360 के बीच में अपन एक एंगल ले लेते हैं 3 pi by 2। ओके, अब सिंपल थिंग मैं आपको बता देता हूं कि 45 से लेके 225 के बीच में क्या होता है? साइन एक्स इज ग्रेटर देन कोस एक्स। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। नाउ ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। This line makes an angle pi by 4 with x axis. तो pi by 4 से लेके 5 pi by 4 तक जो साइन होता है वो क्या होता है? कोस से बड़ा होता है। अब y देखो, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था, अगर याद हो तो आपको। If we take any point on this circle whose first coordinate is cos theta and second coordinate is sin theta, अब इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos थीटा होगा और सेकंड sin थीटा होगा। यानी y इक्वल टू x पे cos और sin दोनों इक्वल होते हैं। इस लाइन पे क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, और इस अपर क्वाड्रेंट में इसके अंदर पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। और जो नीचे वाला है 5 पाई बाय 4, यानी अपन ये बोल सकते यहां से लेके यहां तक 5 पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, यानी फाइबर को अपन अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते तो क्या था? -3 पाई बाय 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 पाई बाय 4। तो -3 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक जो क्या होता है? कोस साइन से बड़ा होता है। कोस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। तो आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। 0 से पाई बाय 4 में क्या होता है? कोस साइन से बड़ा होता है, यानी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 कौन बड़ा होता है?
साइन बड़ा होता है, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और 5π/4 से 2π के बीच में कौन बड़ा होता है, कोस साइन से बड़ा होता है, यानी क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमार्क एफ एक्स इज strictly increasing function. In second interval fx is strictly decreasing function, and in third interval fx is strictly increasing function. तो हम बिना वैल्यू रखे भी चेक कर सकते हैं। Prove that the function f given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1, 1. अपन चेक करते हैं। गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब नाउ फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1. अब नाउ फाइंड टर्निंग पॉइंट्स। फॉर टर्निंग पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 means 2x minus 1 equal to 0. So we get x equal to 1 by 2. Okay, now draw number line. F dash x is equal to 2x minus 1. अब now draw number line माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और टर्निंग पॉइंट क्या मिला था आपको, x इक्वल टू 1 by 2. अब 1 by 2 डिवाइड्स कंप्लीट नंबर लाइन इनटू टू इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी टू 1 by 2 एंड 1 by 2 टू इन्फिनिटी. लेकिन हमें चेक इसके बीच में करना है, -1 to 1 के बीच में चेक करना है. इट इज गिवन द क्वेश्चन, prove that the function f given by this is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1 open interval. So -1 to 1. अब now draw small टेबल. टेबलर फॉर्म में लिखना हो तो टेबल कोई बनाना जरूरी नहीं है. साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड रिमार्क. रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फर्स्ट इंटरवल -1 to 1 by 2 and second 1 by 2 to 1. अब now take any point between this 0 and 1 by 2 and 1, 3 by 4. Now tell me sign of f dash x in first interval means -1 to 1 by 2. अगर 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव. तो रिमार्क क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 1 by 2. अब नाउ 3 by 4 रखो इसमें, 2 into 3 by 4 यानी 3 by 2 minus 1, 1 by 2 यानी पॉजिटिव. यानी क्या मिल गया हमको, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अब नाउ योर ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इंटरवल में क्या आ रहा है, -1 to 1 by 2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड सेकेंड इंटरवल 1 by 2 to 1 fx is strictly increasing function. It means in the interval -1 to 1 fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing function. क्योंकि फर्स्ट में तो डिक्रीजिंग हो रहा है, सेकंड में इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी -1 to 1 में क्या होगा, neither strictly increasing nor strictly decreasing. So therefore from the above table fx is
neither strictly increasing function nor strictly decreasing function in the interval -1 to 1. Find the least value of a such that function f given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 comma 2. Since fx equal to क्या गिवन हमें fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब 1 कोमा 2 में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स इज 2x प्लस a. गिव इक्वेशन नंबर 1. अब इन द इंटरवल 1 कोमा 2 एफ डैश एक्स की वैल्यू अपन निकालते हैं. सिंस x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 कोमा 2. क्लियर. It means 1 is less than x is less than 2. Multiply throughout by 2. 2 से इंटू करो तो क्या आएगा 2 is less than 2x is less than 4. अब इसमें हम क्या करेंगे a प्लस करेंगे एडिंग a on both side. 2 plus a is less than 2x plus a is less than 4 plus a. So we get 2 plus a is less than f dash x is less than 4 plus a. But it is given that fx is strictly increasing function. अब f dash x fx is strictly increasing function means f dash x is greater than 0. अब f dash x greater than 0 कब होगा क्योंकि ये जो क्वांटिटी f dash x है वो 2 plus a से ग्रेटर देन है. अगर 2 plus a 0 के इक्वल हुआ तब भी क्या होगा f dash x ग्रेटर देन 0 होगा. मान लो 2 plus a की जगह मैं 0 रख दूं तो f dash x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0. और यदि 2 plus a 0 से ग्रेटर देन हुआ तब तो f dash ग्रेटर देन हो गई होगा. क्लियर. सो नेक्स्ट स्टेप since fx is strictly increasing function in the interval one comma 2, therefore f dash x is greater than 0, which is possible only when only when 2 plus a is greater than equal to 0. So a is greater than equal to -2. Therefore least value of a means minimum value of a minimum value of a is equal to -2 or we can say least value of a. Show that y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain. तो पहले तो हमको क्या करना होगा फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होगा तभी तो हम चेक करेंगे इस डोमेन के अंदर फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. सिंस y is equal to log 1 plus x base e minus 2x upon 2 plus x. अब इस फंक्शन का हमको पहले क्या करना है डोमेन फाइंड करना है. सो y इज difference of two functions, sorry subtraction of two functions log 1 plus x
एंड 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो पहले हम इनका इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं। log 1 प्लस एक्स का डोमेन क्या होगा? व्हेन log फंक्शन इज डिवाइड व्हेन log फंक्शन इज डिफाइंड, जब log के अंदर की जो क्वांटिटी वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो log फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? एनी क्वांटिटी इनसाइड log ग्रेटर देन जीरो, यानी x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू -1 टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन -1, तभी यहाँ पे log जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, दिस इज रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालते थे 11th क्लास के अंदर? दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू -2। मतलब एक्स -2 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, यानी एक्स क्या हो सकता है? रियल नंबर -2। तो इसका जो डोमेन होगा, मान लो ये जी फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर -2। मतलब -2 को छोड़ के सारे नंबर लेने। अब हमको क्या है ना, दोनों फंक्शन का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा? देयरफॉर डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसमें सिर्फ -2 नहीं है dg में, यानी अगर अपन -1 से इन्फिनिटी का अगर r से अपन इंटरसेक्शन करते तो क्या आता? -1 से इन्फिनिटी आएगा, और उसमें से 2 को माइनस करना, लेकिन 2 तो इसके अंदर होता ही नहीं वैसे भी, यानी जो आपका इंटरसेक्शन वो क्या आ जाएगा? -1 टू इन्फिनिटी। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? -1 टू इन्फिनिटी। अब इस डोमेन में हमको चेक करना है कि जो y है वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सारा हमको करके शो करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं y का। बाकी प्रोसीजर सेम है पूरा। अब नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा? 1। अब इसका करेंगे अपन 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का, किससे करेंगे? डिवाइड रूल से। 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब नाउ 2 प्लस एक्स एज इट इज, और 2x का कितना हो गया? 2, फिर -2x एज इट इज, और 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको, तो 1/1 प्लस एक्स, अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? 4 प्लस 2x माइनस 2x, और अपॉन में आएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है? 2x और 2x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब मोर सिंप्लीफाई, 1/1 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब नाउ सिंप्लीफाई टेकिंग एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब क्रॉस इंटू करेंगे 1 इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करके भी लिख देते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अब नाउ कैंसिल कर दो आप, 4x और 4x कैंसिल हो गया, और -4 और +4 कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स
इंटू 2+x होल स्क्वायर। अब हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है। whenever rational function is there always check denominator must be positive। जब भी आप टर्निंग पॉइंट निकालोगे तब आपको चेक करना है 2+x होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट 1+x अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो नेगेटिव आएगी और x की वैल्यू +2 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी हम डिनोमिनेटर के बारे में बोल नहीं सकते कि वो मस्ट बी पॉजिटिव। यानी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1+x। अब ऐसा करने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 1+x और अपन में मिल जाएगा हमको 1+x होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 2+x होल स्क्वायर इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। यानी डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। अब निकालेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स। पुट f dash x इक्वल टू 0, यानी हम किसको 0 को इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर 1+x अपॉन एक्स स्क्वायर 1+x अपॉन 1+x होल स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू 2+x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई, so we get 2 टर्निंग पॉइंट्स। जो डिनोमिनेटर वो तो 0 में चला जाएगा, क्रॉस इंटू हो जाएगा तो x इक्वल टू 0 मिलेगा अपन को और x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। अब नाउ ड्रॉ नंबर लाइन। -, इंफिनिटी, -1, 0। So -1 and 0 divide complete number line into 3 intervals, -infinity to -1, -1 to 0 and 0 to infinity. अब now prepare table, interval sin of f dash x and remark interval -infinity to -1, -1 to 0 and 0 to infinity. अब नाउ चेक साइन ऑफ f dash x इन डिफरेंट इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल में अपन कोई वैल्यू कौन सी लेंगे, -2 रख दो यहाँ पे। बिटवीन -1 एंड 0 -1/2 एंड इन द इंटरवल 0 to infinity पुट 1। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। f dash x आपका क्या है, ये जो फंक्शन था आपका f dash x है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ f dash x। f dash x किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर 1+x अपॉन 1+x होल स्क्वायर 2+x होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं f dash x की, सबसे रख रहे हैं -2। देखो एक्स स्क्वायर 1+x स्क्वायर 2+x स्क्वायर, इन तीनों के वजह से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इनको चेक नहीं करना, सिर्फ चेक इसको ना 1+x। जैसे -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब -1 और 0 के बीच में -1/2 रखेंगे यहाँ पे, 1 - 1/2 तो पॉजिटिव। और अब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 आल्सो पॉजिटिव। So in first interval f(x) is strictly decreasing function. In second interval f(x) is strictly increasing function, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, f dash x is पॉजिटिव। और थर्ड में क्या होगा, f(x) is strictly
increasing function. So conclusion is -1 to 0 fx is strictly increasing function and 0 to infinity is strictly increasing function. अगर दोनों को अपन कंबाइन कर दे तो क्या होगा? -1 to infinity. और अपना क्वेश्चन क्या था? Prove it या show it y equal to log 1 plus x minus this is an increasing function of x throughout its domain. और डोमेन हमने क्या निकाला था? -1 to infinity. So therefore y is a strictly increasing function in its domain. Hence proved. In next lecture, we will discuss maxima or minima. Thank you. Have a nice day.